Yes. So public facilities, as I told you earlier also, means those utility services which are provided by the government so that all the people of the country can make use of them. Why government undertakes this initiative of provision of public facilities? Because if all the arrangement of this provision of public facilities is left in the hands of private sector people, then they will start charging a very high price for them, and then it will become very difficult for the poor people, for middle income people to make use of those facilities. That is why, keeping in view the welfare of whole of the society, governments in most of the countries, it's not that only in India our government does so, almost all countries की जो governments हैं, they do the same. They provide utility services to the people of their country. ठीक है, फिर उसके बाद है एक राइट साइड जो कॉलम है, यू कैन सी वहां पे लिखा है कि कई बार क्या होता है, कोलेक्टिव सर्विसेज वो होनी जरूरी है. कोलेक्टिव सर्विसेज, वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज गिवन कि इमेजिन इन योर एरिया देयर इज नो स्कूल. अब सच में नहीं है, वी जस्ट हैव टू इमेजिन कि देयर इज नो स्कूल इन योर लोकेलिटी और एरिया एंड योर पेरेंट्स वांट यू टू स्टडी. तो देन व्हाट ऑप्शन दे आर लेफ्ट विद? Either they cannot make any as per their income level, either तो they can make some arrangement, they can financially they are sound and they can make some arrangement, they can call any tutor at home, or they can send you at some other place, कुछ ना कुछ कोई आसपास दूसरे किसी लोकेलिटी में some school can be there, they can send you there, या किसी को घर पे बुला के आपको पढ़ा सकते हैं. बट द सेम थिंग इज नॉट विद ऑल द पेरेंट्स. सबके पास जरूरी नहीं है सेम टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो एंड ऑल कैन मेक दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. तो इसका मतलब जो एंड स्टिल देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन योर अदर चिल्ड्रन आल्सो इन योर लोकेलिटी, दे आल्सो नीड टू स्टडी. तो फिर क्या हो जाता है कि कोई एक स्कूल होना चाहिए. देयर शुड बी सम स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर ऑल चिल्ड्रन कैन गो. तो अब ये जो स्कूल की जो नीड है, व्हाट टाइप ऑफ नीड इज दिस? इट इज ए कलेक्टिव नीड. कलेक्टिव मतलब सबकी जरूरत है ना. रोड है, कोई स्ट्रीट है, तो वो आपके लोकेलिटी में रहने वाले, दैट इज द नीड ऑफ ऑल द पीपल. सिर्फ आपको ही नहीं कि हमारे घर के गेट के आगे रोड बनी है तो बाकी टूटी फूटी है. नो, दैट रोड, दैट स्ट्रीट इज नीडेड बाय ऑल द पीपल. इलेक्ट्रिसिटी नीडेड बाय ऑल द पीपल. ठीक है. तो ऐसे इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कोई पब्लिक पार्क है, कोई पेट्रोल पंप है, कोई रोड है, कोई स्कूल कॉलेज है. ऐसी चीजें वो किसी इंडिविजुअल की नीड नहीं है कि ओनली वन पर्सन नीड्स देम. ठीक है. ऑल द पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप. कोई स्कूल कॉलेज है तो बच्चों के लिए, बाकी कोई बड़े हैं, सबके लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, all people sometimes they need different kinds of collective needs. ठीक है. उसके बाद please come to next page. After that, just a second. Yes, it's not here, but you will please see your own book. Again, in the very first para, Kerala का example दिए. So please underline this. Kerala has low infant mortality rate. उसको expand किया गया है because it has adequate provision of basic health and educational facilities. आगे वाली lines भी आप कर लो. Similarly, in other states, PDS system functions well. PDS shops, ration shops, कई states में they are not functioning properly. तो मतलब है last line, health and nutritional status of the people of such states is certainly likely to be better. मतलब those states just like Kerala which pay attention to the provision of health facilities. अब health facilities how can they be provided? That means their government has taken care of the number of hospitals, clinics, dispensaries, doctors का arrangement, nurses का arrangement, ऐसे सब arrangements की तरफ they have paid more attention. इसका मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट्स आर नॉट पेइंग. सी, वी हैव टू जस्ट कंपेयर कि भी दैट स्टेट हैज टेकन मोर केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने. सिमिलरली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव रेड इन 9th क्लास की पुअर पीपल होते हैं, दोज हु आर अनएबल टू बाय फूड ग्रेन्स एट द मार्केट प्राइस, तो दोज पीपल आर प्रोवाइडेड सब्सिडाइज्ड फूड. सब्सिडाइज होते हैं थोड़ी कम प्राइस के ऊपर, सस्ते प्राइस के ऊपर, चीप प्राइस के ऊपर. तो वो सब्सिडाइज्ड फूड उनको एट लेस प्राइस दैट इज प्रोवाइडेड बाय दोज राशन शॉप्स, जिसको राशन डिपो भी बोल देते हैं आम बोलचाल में. तो वो राशन शॉप्स जो होती है, राशन डिपो होते हैं, वहां से उनको थोड़ा सस्ता दे दिया जाता है. ये क्यों किया जाता है? सो दैट वो पीपल भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, बिकॉज फूड इज द इसेंशियल नीड ऑफ द मैनकाइंड. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ओनली रिच हैव टू ईट और पुअर बेचारे बैठे हुए. मैनकाइंड है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, फॉर सर्वाइवल एवरीबडी नीड्स फूड.
तो अब जो पुअर हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ड्यू टू देयर पॉवर्टी दे शुड बी लेफ्ट फ्री टू डाई, कि मर जाओ आप, ऐसा नहीं। तो बिकॉज अवर गवर्नमेंट्स आर वेलफेयर गवर्नमेंट्स, तो दे हैव टू पे अटेंशन टू द वेलफेयर। तो केरला स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ज्यादा अटेंशन इस बात की और पे किया कि पीडीएस सिस्टम ज्यादा बढ़िया तरीके से वहाँ पे फंक्शनिंग कर सके, तो इस करके वहाँ पर हेल्थ भी अच्छी रही या एजुकेशन का स्टेटस भी अच्छा रहा, ज्यादा स्कूल कॉलेजेस की तरफ ध्यान दिया। तो मीन्स दोज गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट की हो और ऑफ countries, if they pay attention to the provision of schools, colleges, hospitals, doctors, provision of food grains, मतलब एक basic needs की तरफ if they pay attention, तो certainly that society seems to be a better society, लोगों की ये जरूरतें पूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद now one activity has been given, this I request you to do yourself. I have already sent the PDF as told earlier also. ये new values आपने देखनी है new books के according. तो very interesting, simply blanks are given after analyzing. Now I hope I have elaborated the table in my previous lecture also, कैसे देखना है आपने। जैसे ये literacy rate for rural population है, तो फिर आगे दिया हुआ है males and females, कि village में कितना number of males हैं, कितने number of females हैं। For example, 76% males हैं overall literacy rate, मतलब परसेंट का मतलब होता है इफ टोटल पॉपुलेशन विलेज की 100 है तो आउट ऑफ दैट 76 जो बॉयज हैं या मेल्स हैं दे आर लिटरेट, एंड हाउ मेनी फीमेल्स आर लिटरेट, 54। नाउ इफ वी वांट टू कंपेयर, सिंपली व्हाट कैन वी से, देयर इज मोर लिटरेसी रेट अमंग मेल मेंबर्स इन द विलेजेस, फीमेल लिटरेसी रेट इज लेस इन द विलेजेस, ऐसे कंपेयर करेंगे। सेम वे आगे दिया हुआ एज ग्रुप 10 to 14, 14 to 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, literacy rate, percentage of rural. So you are requested to read this table very carefully, and then the blanks which are given below, they are to be filled. Okay, with pencil you can fill, and then you can cross check with your friends. Very simple, nothing is difficult here. देख देख के यहाँ से आपने values ही put करनी है. Nothing is difficult. Now I would like to show you one video also. Otherwise that will left. Just a minute. Let me try to find that. एक मिनट बेटा। एक मिनट, आई शेयर अगेन। People are different. People are different. Men and women are different. Rich and poor are different. Boys and girls are different. They have different thinking, different dreams, different desires, and different development. Reason है कि लोग different हैं। वो different तरीके से सोचते हैं कि सबने different सोचते हैं। Men or women or rich and poor or a boy and girl, he is different development. A rich boy may want admission to a good college, but for a rich girl, the school will be good college. To be given permission to move out of the town for the school. Rich boy to go to that rich college, but for a rich girl, का जो ambition होगा, इच्छा होगी, वो लीजिए उसके भाई के साथ में, और उसे भी वही फैसिलिटी, वही अपॉर्चुनिटी है जो उसके भाई को दी जाए। उसको भी बाहर जाने के लिए, बाहर जाने पर नॉन चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लोगों की डिफरेंट गोल्स है, बिकॉज लाइफ
poor person may be satisfied with a simple fare, but for a rich person, he will try to get good quality of latest price. There's a difference. Like, the third point is that developmental goals can be conflicting. Conflicting them can be case of Sardar Sarovar Dam and Narmada Bachao is a classic. The people of Gujarat who were going to get water from Sardar Sarovar Dam were strongly in favor of site. But the travels of Madhya Pradesh were getting displaced for it. लोगों की goals differently conflict और एक की डेवलपमेंट होती है दूसरे की वो बिना सरदार सरोवर डैम का प्रोजेक्ट और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल। गुजरात के लोग जिनको कि वो पानी मिलने वाला था सरदार सरोवर डैम से, वो उन्होंने बहुत कोशिश की उसकी हाइट बढ़ाने और जो ट्राइबल्स थे मध्य प्रदेश के जिनको के सरदार सरोवर डैम की वजह से अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही थी, अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, उन्होंने इस डैम के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ था जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से फेमस है। इस टॉपिक के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है और 3 मार्क्स की हमारे पास पॉइंट है। People have different developmental goals because number one, people are different because their life situations are different. And number two is conflicting developmental goals. And conflicting development. हम इन 3 पॉइंट्स को इनके साथ इन्हें हेडिंग बना के इनके साथ सेंटेंस डाल के बड़ा अच्छा मार्क्स का आंसर जरूर कर सकते हैं। हम देखते हैं नंबर 1, people are different. Different people have different desires and children with different priorities. Need of the rich and the poor and of males and females are different. A rich urban girl may seek equality, while a boy may seek admission with good college. Like people in different life are in different life situations and life situations influence like food. A person willing to do higher education will change go for employment because of the economic situation. अलग अलग लाइफ में हमारे गोल्स और प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाते हैं। एक पर्सन जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, अगर उसकी इकोनॉमिक वीक हो जाए तो उसे अपना गोल चेंज करके उसे एम्प्लॉयमेंट लेना पड़ेगा, उसे जॉब लेनी पड़ेगी। Conflicting developmental goals. Often people have conflicting developmental goals. One may be development for one, may not be the development for others. It may even be destructive for the reaction of people of Gujarat and the tribal people of Madhya Pradesh to Sardar Sarovar Dam is a good example. Now, with this, we come to the end of the video. I hope you have found the video useful. Yes, I hope with the help of this video, you would have been able to understand little bit in a better way. Now let us quickly come to our page number 13. Today we are going to discuss this very interesting and very useful topic. And this you can make use of this topic on yourself also. This is given in the form of activity, but question can also be asked here. So please underline. Second sentence mein you can see there is one term given here, body mass index, BMI. मतलब this paragraph activity is related to the calculation of body mass index. ठीक है, अब इसका body mass index का क्या मीनिंग होता है? Body mass index का मतलब है कि as per your age we have to see कि what is the nutritional level. आपका जो डाइट है उससे कितना न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, कितनी हमें एनर्जी मिल रही है, उस न्यूट्रिशन और एनर्जी की हेल्प से वी बिकम एबल टू डू सम वर्क। तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है या कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके रिलेटेड ये क्राइटेरिया है, इंडेक्स है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अब करना क्या है, यू कैन प्लीज अंडरलाइन, यहाँ पर स्टेप्स हैव बीन गिवन, यू अंडरलाइन प्लीज व्हाट टू डू। फर्स्टली टेक द वेट ऑफ पर्सन इन किलोग्राम। आप अपना एग्जांपल लो, टेक योर ओन एग्जांपल, जस्ट कैलकुलेट योर वेट, चेक करो आपका वेट कितना, अभी नहीं लग जाना चेक करने, बाद में। ठीक है,
किलोग्राम्स में देखना है, किसी बच्चे का वेट 50 केजी हो सकता है, किसी का 60 केजी, 70 केजी, 45, 50, कोई भी जो भी आपका अपना वेट है वो आप यू कैन राइट ऑन वन पेज. आफ्टर दैट टेक द हाइट इन मीटर्स. देन उसके बाद कैलकुलेट योर हाइट, सी चेक योर हाइट. हाइट चेक करने के लिए आपने मोस्ट ऑफ द टाइम वी चेक द हाइट इन फीट एंड इंचेस या सेंटीमीटर्स में, बट हियर वी हैव टू पे अटेंशन. प्लीज अंडरलाइन हाइट इन मीटर्स. आपकी जितनी भी हाइट है फीट और इंचेस में या सेंटीमीटर्स में आप कैलकुलेट करते हो, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन मीटर्स. दिस वर्क यू हैव डन इन मैथ्स, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. देन डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट. जितना आपने वेट लिखा हुआ था एक साइड पे पेपर पे, जो भी लिखा था वैल्यू, उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, स्क्वायर ऑफ हाइट से. मतलब मीटर में जो आपकी हाइट है उसका स्क्वायर निकालना है. देन विद द हेल्प ऑफ दैट स्क्वायर ऑफ हाइट यू हैव टू डिवाइड योर वेट. What was the unit of measurement of weight? That was in kilograms. ठीक है. तो फिर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, if that value is less than 18.5, अब जरूरी नहीं सबका 18.5 आए. अगर 18.5 है then it is okay, fine, no problem is there. But if that value is less than 18.5, then person would be known as undernourished. Undernourished का मतलब कि उसको अपनी डाइट से जितना भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, that student, that person is not getting that. But if value comes out to be more than, see, very interesting, if the BMI is more than 25, then person is overweight. मतलब 18.5 से लेके 25 के बीच में है, then it is okay, no problem, overweight नहीं कहा जाएगा. But अगर 25 से भी ज्यादा आपका आंसर आता है, then you are overweight. That means you need to check, you need to control your diet. Overeating avoid करनी चाहिए, healthy food should be taken. So this way we can do this. Okay, so you all are requested, very interesting. You all can do it today. And after calculating your BMI, you can write when you write the question answers of this chapter. तो ये आपकी एक्टिविटी है, वहां पे एंड में आप लिख सकते हो माई BMI इज इक्वल टू सो एंड सो. पहले ऊपर लिखना है माई वेट इन किलोग्राम इज इक्वल टू दिस, माई हाइट इन मीटर्स, माई मतलब नॉट मी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. आप फिर लिखोगे योर हाइट इन मीटर्स, आगे लिखना है, वैल्यू लिखनी है. फिर कैलकुलेशन ऑफ BMI इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर ऑफ मीटर्स. ठीक. फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेशन दैट यू कैन डू इन योर रफ वर्क, देन दैट वैल्यू इज टू बी रिटन. आई होप इट इज क्लियर. अगर 18.5 से लेस है तो प्लीज मेंशन आई एम अंडर नरिश्ड. सैड सा कार्टून भी आप बना सकते हो साथ में. अगर आपका 18.5 से लेस देन 25 है, बीच में है, देन इट इज ओके, आई एम परफेक्टली ऑल राइट. ठीक. इफ मोर देन 25 आता है, जो बच्चे बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सर्ट नहीं करते हैं, वो लिखेंगे आई एम ओवरवेट या माई इंडेक्स इज मोर, सो आई एम ओवरवेट, आई नीड टू पे अटेंशन टू माई फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो. ठीक. तो ये आप यू कैन डू दिस, एक्टिविटी ही लिख सकते हो हेडिंग बना के एक पेज के ऊपर, एक्टिविटी हाइफन BMI. ठीक है. इन दिस मैनर कलरफुली आप थोड़ा सा उसको डेकोरेट करके कर सकते हो ना, जैसे इन द लास्ट लेसन वी हैव प्रिपेयर्ड दैट फ्लैग. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से, सो दैट व्हेन यू लुक एट द नोटबुक यू फील हैप्पी कि मैंने ऐसे कैलकुलेट किया था, है ना. तो एक हैप्पी मोमेंट्स की याद आ जाती है. तो दैट यू कैन राइट, you can make use of colored pencil or pen also. So one page can be devoted to this calculation of BMI. Right, bete? Chaliye, now next is, let me see, it's going to be over. So with this, I want to conclude here.